میاں عمر بھر سفر میں نیند نہیں آئی، آج کیا خاک آئے گی؟ تم سو جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں نا، اور پھر ہمارا جاگنا ضروری ہے۔ 4:30 بجے ریل منزل پر پہنچے گی، تمہیں تو اندازہ بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے ضد کر کے مجھے لیٹا دیا۔ ٹرین کی ردھم خیالات کے ساتھ سفر کرتی رہی اور آنکھوں میں غنودگی گھل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے احساسات سو گئے۔ نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی سوتے ہوئے، نہ جانے کیا وقت تھا کہ اچانک قیامت ظہور میں آ گئی۔ اتنی تیز روشنی ہوئی کہ بینائی جاتی رہی۔ کوئی آتش فشاں پھٹا تھا یا زلزلہ آیا تھا، کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ انسانی شور چاروں طرف سے ابھر رہا تھا، لوگ بھیانک آواز میں چیخ رہے تھے۔ میرا چہرہ بھیگا بھیگا سا لگ رہا تھا۔ گہری نیند سے آنکھ کھل جانے کی وجہ سے سر دکھ رہا تھا۔ دوبارہ سو جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ سب کچھ بھول کر، سب کچھ نظر انداز کر کے میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ پھر نہ جانے کب جاگا تھا۔ تیز روشنی ہو گئی تھی، کھڑکیوں سے سورج کی شعاعیں اندر آ رہی تھی، گرمی لگ رہی تھی۔ پنکھا بند تھا۔ نہ جانے کیوں تبھی مجھے آواز سنائی دی، رتنا او رتنا، کب تک سوتا رہے گا؟ 10 بج رہے ہیں، اٹھ جا رتنا بھائی۔ نہ جانے کون تھا، نہ جانے کسے آوازیں دے رہا تھا، مگر پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت خاتون اندر آ گئی۔ بھاری بھرکم معمر خاتون تھی، ساڑی باندھے ہوئے تھی، ماتھے پر بندیا لگی ہوئی تھی، عمر 40 سے اوپر ہی ہوگی۔ رتنا اٹھ جا بیٹا، دیکھ کتنا دن چڑھ چکا ہے۔ اوفو، پسینے میں بھیگ رہا ہے۔ نگوڑ ماری بتی 2 گھنٹے سے جو گئی ہوئی ہے۔ ان بجلی والوں نے تو ناک میں دم کر دیا ہے۔ ارے تو اٹھے گا یا نہیں؟ خاتون نے میرے شانے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور میں دم بخود رہ گیا۔ رتنا اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پانی لاؤں ٹھنڈا؟ چاچی 2 کٹورے بھر کر ڈال دو، نیند ایسے بھاگے گی جیسے ماما جی کے سر سے سینگ۔ باہر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، رتنا اٹھ جا بیٹا، اتنی دیر سونا اچھا نہیں ہوتا۔ عورت نے پھر کہا اور میں جلدی سے اٹھ گیا۔ جا منہ دھو لے، میں مالتی سے ناشتہ بھجواتی ہوں، اب دوبارہ نہ لیٹ جائیو۔ معمر خاتون واپس مڑی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ میں کہاں ہوں؟ کون سی جگہ ہے؟ اور رتنا، یہ عورت مجھے رتنا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیسا عجیب انداز ہے اس کا، محبت سے بھرپور، ایسا جیسے مجھے عرصے سے جانتی ہو۔ کون ہے یہ؟ اور یہ جگہ کون سی ہے؟ یا خدا، یہ خواب ہے یا عالم بیداری؟ ابھی میں سحری سے پاؤں لٹکائے بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے میں ایک جھری سی پیدا ہوئی اور ایک روشن چہرے نے اندر جھانکا۔ چمکتا ہوا سفید رنگ، بھورے بال، پرکشش نقوش، حسین آنکھیں جن میں شوخی تھی۔ پھر ہنسی سنائی دی اور وہ اندر آ گئی۔ ہاتھ میں نقشین مراد آبادی کٹورا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ رتن مہاراج، صبح ہو گئی، یہ میری طرف سے۔ اس نے کٹورے کا پانی میرے چہرے پر ڈال دیا اور میں اچھل پڑا۔ پانی یخ ٹھنڈا تھا اور میرا چہرہ اور سینہ بھگو گیا تھا۔ میں جھجک کر مسیری سے نیچے آ کھڑا ہوا۔ لڑکی نے کہا لگاتے ہوئے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی اور گڑاپ سے باہر نکل گئی۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ مگر اب یہ کیا حقیقت ہے؟ کیا ہو گیا ہے میرے معبود، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے سوچا۔ یوں احمقوں کی طرح کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، باہر نکلوں، کچھ اندازہ تو ہو۔ دروازے سے باہر نکل آیا، سامنے کچن تھا، باتھ روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ قدم اس طرف اٹھ گئے۔ میں اس پرانے طرز کے باتھ روم میں داخل ہو گیا، دروازہ بند کیا، کپڑے اتارے، مگر کپڑے اتارتے ہوئے میں بری طرح اچھل پڑا۔ یہ میرے کپڑے نہیں تھے، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ سلک کا کرتا، لٹھے کا پاجامہ۔ کیا ہو گیا ہے مجھے، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پانی کا نل کھول دیا، اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ میری سوچ پرواز کرنے لگی۔ کب سویا تھا، کہاں سویا تھا کہ آنکھ یہاں کھلی؟ ذہن کے پردوں پر مٹے مٹے نقوش ابھرنے لگے۔ کانوں میں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی جو تیز اور واضح ہوتی جا رہی تھی۔ ریل کی آواز، ریل، چاند خان، میاں کھا لو چندہ، عید بقرعید پر تو سبھی سو جاؤ، سو جاؤ۔ چاند خان، ارے ریل، چاند خان، رتولی۔ وحشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، پاگلوں کی طرح دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، دماغ بری طرح چکرا رہا تھا، پانی شانے پر گر رہا تھا،
कौन है अंदर? बाहर से आवाज़ सुनाई दी और मैं दरवाजे को देखने लगा। कौन है अंदर? आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैं हूँ मालती, मेरे मुंह से निकला। लेकिन जो कुछ मैंने कहा था वो क्या है ये सब कुछ? नहा रहे हो रत्ना? बाहर से पूछा गया। हाँ, मैं घुटी घुटी आवाज़ में बोला। दरवाज़ा बाहर से क्यों बंद कराया है? मैंने नहीं कराया, मैंने झल्ला कर कहा। समझ गई, श्यामा ने शरारत की होगी। मैंने खोल दिया है। वही आवाज़ सुनाई दी, मगर इस बार मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। मेरा दिल दिमाग काबू में नहीं था। अंदर से एक ही आवाज़ उभर रही थी, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया। मैं चांद खान के साथ रतौली नहीं पहुंच सका और चांद खान वो न जाने कहाँ गए। मैं होश में हूँ और न जाने किस तरह इस अजनबी जगह पर आ गया हूँ। अजनबी जगह, रत्ना, क्या बेतुका नाम है। आखिर ये लोग मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहे हैं? रत्ना जी, बाहर से फिर वही आवाज़ उभरी और मैं चौंक पड़ा, मगर कुछ बोला नहीं। रत्ना जी, कितनी देर में बाहर आओगे? बड़ी ज़ोर से गुस्सा आया था, मगर क्या मुझे गुस्सा आना चाहिए? क्या मैं इस पोजीशन में हूँ यहाँ? आ रहा हूँ बस। हमने नाश्ता लगा दिया है। बाहर से आवाज़ उभरी और मैं गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। कोई पागल है, कुछ ना सोचने देगी, निकला जाए, मगर दिमाग ठंडा रखना होगा। न जाने क्या हुआ है और कैसे हुआ है। नल बंद कर दिया, लिबास पहना, बाल बनाए और बाहर निकल आया। बाहर कोई नहीं था। मैं उस कमरे में नहीं गया जहां खुद को सोते हुए पाया था, बल्कि एक राहदारी से गुजरकर बाएं हाथ के एक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। सामने डाइनिंग टेबल थी, उस पर नाश्ते का सामान सजा हुआ था। कुर्सी घसीट कर बैठ गया, नाश्ता आगे सरका लिया, मगर मैं इस कमरे में कैसे आ गया? मैं कैसे जानता था कि नाश्ता इस कमरे में लगा हुआ होगा? मेरे कदम इस तरफ कैसे उठे? मैं भटक क्यों ना गया? ये सब कुछ मुझे अजनबी क्यों नहीं लग रहा? ये क्या है? भूरिया चरण का कोई नया खेल? दिमाग पर सन्नाटा तारी हो गया। चांद खान कहाँ है? हम दोनों तो रेल में सफ़र कर रहे थे। चांद खान जाग रहे थे, मैं सो रहा था। फिर वो ख्वाब जैसी कोई आवाज़, तेज़ रोशनी, और फिर मैं दोबारा सो गया था, सब कुछ एक ख्वाब समझकर। और अब ज़रूर भूरिया चरण कोई चाल चल गया है। उसने मुझे इस मुकद्दस मज़ार पर पहुंचने ही नहीं दिया। और अब मैं किसी हिंदू घराने में था और ये लोग मुझे रत्ना कहकर पुकार रहे थे। कौन लोग हैं ये? वो मुअम्मर खातून, वो खूबसूरत सी शरीर लड़की। कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी खतरनाक जाल में तो नहीं फंस गया मैं? कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली? नहीं, होशियारी से काम लेना होगा, सोच समझ कर कदम उठाना होगा, हालात का जायजा लिया जाए। वो चाय वापस ले गई थी, सोचा ठंडी हो जाएगी। अब गरम गरम लाई हूँ। अरे तुमने तो नाश्ता भी शुरू नहीं किया, अभी तक सो ही रहे थे क्या? नौजवान औरत थी, काला रंग था मगर नकूश बुरे नहीं थे। रत्ना जी, नाश्ता करो। कर रहा हूँ मालती, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। और फिर एक बार फिर मैं दिल में चौंक पड़ा। मैं उसे इतने एतमाद से मालती क्यों कह रहा? कैसे जानता हूँ कि ये मालती है? कुछ और लाएं तुम्हारे लिए? नहीं, लाला सुरेश चंद्र जी आए हैं। गुड़ के शीरे हैं निरे, चिपक जाएंगे तो छूटने का नाम नहीं लेंगे। बेचारी रमा रानी उनके सामने जा फंसी हैं। अब कोई कैसे निकाले उन्हें? हम कहें उन्हें और कोई काम नहीं है। अभी सुबह हुई और अरे कुछ और लाएं तुम्हारे लिए। मालती भी जनूनी ही मालूम हो रही थी। कमबख्त की जुबान तालू से नहीं लग रही थी, बोले चले जा रही थी। उसी वक्त कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दी। मालती की आवाज़ बंद हो गई। कुत्ता बुरी तरह भौंक रहा था। मालती ने परेशानी से कहा, ये कुत्ता कहाँ से घुस आया? देखो बाहर जाकर। मैंने कहा, अरे हम देखें ना रत्ना जी, कुत्ते से हमारी जान निकले है। दरवाज़ा बंद किए दे हैं हम, कहीं पापी इधर ही ना घुस आए। मालती ने झपट कर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं नाश्ते में मसरूफ़ रहा। कुत्ता खामोश हो गया था, मगर कुछ देर के बाद एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, मालती, अरे ओ मालती, कहाँ मर गई? मालती उछल पड़ी। लो शुरू हो गई आवाज़ें। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। आई रमा रानी, वो कुत्ता, ये किश्ना कहाँ छुपी है? इसे तलाश कर। आज ये नहीं, अब मैं नहीं। आखिर ये करना क्या चाहती है? क्या सोचा है इसने? अरे हमारे यहाँ काम के आदमी हैं, हज़ारों काम निकलते हैं उनसे, और ये है कि
रमा रानी अंदर दाखिल हो गई। ये वही मुअम्मर खातून थी। रमा रानी, मैंने सोचा। मुअम्मर खातून अंदर घुस आई, इधर उधर देखा और बोली, रत्ना वो यहाँ तो नहीं आई? नहीं चाची, मैंने कहा। जाएगी कहाँ, छोड़ूंगी नहीं इसे। रमा रानी बाहर निकल गई। मेरी कैफियत अब किसी कदर बहाल हो चुकी थी। समझ में तो कुछ आया नहीं था, लेकिन अब दीवानगी से क्या हासिल, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाए। चाय की 2 प्यालियां पीकर उठा ही था कि वही शौक लड़की दोबारा अंदर घुस आई और मेरी कमर पकड़कर मेरे पीछे आ गई। आज बचा लें रत्ना जी, बस आज बचा लें। भगवान के लिए वादा करती हूँ आगे कुछ नहीं करूँगी। अरे अरे, मेरी कमर तो छोड़ो, कपड़े धोने की मुगरी हाथ आ गई है। एक भी पड़ गई तो अपने जल ठंडे हो जाएंगे। सचमुच गुस्से में है, मार देंगी। कौन? चाची। मगर हुआ क्या है? मैंने बेइख्तियार पूछा। अरे भगवान इनका नाश करे, खटिया खड़ी हो इनकी। वही आम मरे थे सुरेश चंद्र जी। आते हैं तो जाते नहीं, सारा सारा दिन एंडते रहते हैं यहाँ, और हम सब पर कर्फ्यू लग जाता है। खामोश रहो, हंसो भी नहीं, और सामने आ जाओ तो ऐसे घूरते हैं जैसे गंडेरी नजर आ गई हो। फिर तुमने क्या किया? कुत्ते से जान निकलती है उनकी। सुना है 28 इंजेक्शन लगवा चुके हैं। 2 बार कुत्तों ने काटा है। वो हंस पड़ी, चेहरा सुर्ख हो रहा था। कुंदनी रंग पर पसीने के कतरे बेहद भले लग रहे थे। बेइख्तियार हंसती रही, आंखों में पानी आ गया। बोली, कुत्ते की आवाज़ का रिकॉर्ड लगा दिया था मैंने और आवाज़ तेज़ खोल दी थी। ये कहकर वो फिर बेइख्तियार हंसने लगी थी। हंसते हुए बोली, ये रिकॉर्ड मैं उन्हीं के लिए लाई थी। सर पर पाँव रख कर भाग गए। चाची पुकारती ही रह गई। तुमने गुसल खाने का दरवाज़ा बंद किया था, मैंने उसे घूरते हुए कहा। अब जो ऐसे करूं तो इतनी बड़ी ही मर जाऊं, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, और फिर सहमे हुए लहजे में बोली, अरे इधर ही आ रही हैं, ये था मेरा नया ठिकाना। मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? ये लोग मुझे रत्ना कहकर क्यों पुकारते हैं? मैं इनका शनासा कैसे हूँ? बार बार तो ऐसे जैसे वाक़यात नहीं होते ना। अगर सरफराज का हमशक्ल निकल आया था तो किसी रत्ना या रतन का हमशक्ल तो नहीं हो सकता था। फिर ये सब कुछ। आखिर फैसला किया कि जो कुछ भी है सब्र सुकून से बर्दाश्त करूं, इंतज़ार करूं कि सूरत हाल मालूम हो जाए। ये अंदाज़ा तो हो गया था कि मैं रतौली नहीं पहुंच सका। अब भूरिया चरण कोई और चाल चल गया, मगर उसने इस बार क्या किया है कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। न जाने चांद खान किधर गए। रत्ना ही बन गया। अपनी कैफियत पर अलबत्ता सख्त हैरान था। मुझे उस घर के बारे में सब कुछ मालूम था। मेरा कमरा कौन सा है, औरत को मैं चाची कहकर पुकार रहा था। एक और नौजवान लड़की सामने आई तो मैंने उसे राधा कहा और उसने जवाब भी दिया। इस तिलिस्मी कैफियत का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। दिन भर कोई काम ना करना पड़ा। अजीब सा घराना था। 2-3 बार मर्दों की आवाज़ भी सुनाई दी थी। अलबत्ता रात हुई तो दिल उछलकर हलक में आ गया। कुर्बो जुआर की तमाम इमारतें जगमगा उठी। हर तरफ से तबला, सारंगी और हारमोनियम की आवाज़ें उभरने लगीं। ये नाचने गाने वालों का इलाका था और रमा रानी भी उन्हीं में से एक थी। खुदा तुझे फना कर दे भूरिया चरण, ये कहाँ ला फेंका तूने मुझे इस गलाजत खाने में। दिल बुरी तरह दुखने लगा। क्या करूं, क्या यहाँ पड़ा रहूं? यहाँ किश्ना याद आई थी। मासूम शोख अल्हड़ लड़की, राधा उसकी हम शक्ल, और ये सब नाच गाने का कारोबार करती थी। उसका अमली तजर्बा भी हो गया। शाम से पहले उस घर की हकीकत नहीं खुली थी, लेकिन जूं ही शाम हुई माहौल बदल गया। पाकीज़गी गंदगी में तब्दील होने लगी। राधा, लक्ष्मी और शोखो शरीर किश्ना रंग बदलने लगी। ज़र्क बर्क लिबास, चेहरों पर मसनूई अशिया का निखार, और फिर वसीओ अरीज कमरा, सफ़ेद बुराक चांदनियाँ, तबला, सारंगी, हारमोनियम, उनके अकब नोकीली मूँछों वाले साजिंदे साज़ों के सुर दुरुस्त करते हुए। मैं पाबा जंजीर नहीं था, यहाँ से भाग भी सकता था, लेकिन कहाँ? हर जगह मौत और तबाही, कहीं अमान हासिल नहीं थी। बेबसी से आंखों से आंसू निकल आए। खुदाया, ये भी दिन दिखाना था। ऐसी जगह भी रिस्क लिखा था। खान साहब याद आए। मियाँ चांद, मर्द की आंखों में आंसू नहीं, शोले होने चाहिए, शोले नज़र आने चाहिए। आह खान साहब, ये शोले मुझे भस्म कर सकते हैं। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रतन जी, ए रतन जी, मालती की आवाज़ सुनाई दी।
وہ سامنے آ گئے۔ کیا ہے مالتی، ہار نہیں لائے ابھی تک؟ ہار؟